Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to another new vlog. This is gonna be my first ACC exam vlog. So today's 27th November और अब बहुत कम टाइम बचा है मेरे एग्ज़ाम को। मैं चाहता था कि मैं इसको पहले व्लॉग करूं बट देन इवेंचुअली मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। I'm super nervous. I'm super tired. By the way, today is Friday. I'm done with my college. And another update I want to give you is Saturday, Sunday, Monday, 3 days I have my holiday, study holiday, and Tuesday is my exam. So let's go and study. My preparation बिल्कुल नहीं है. I'm really nervous, really worried. But let's just see कि क्या होता है. फिलहाल let me go home and then I'll catch you. Guys, I'm back from college. मैं आके काफ़ी ज़्यादा सो गया था and you won't believe me right now it's 7 o'clock और मैंने आके कुछ नहीं किया है, सिर्फ रील स्क्रॉल की हैं घंटों घंटों। और मैंने एक रील एडिट कर लिया है, एक रील बना ली, एक थंबनेल बना लिया। लाइक कंटेंट क्रिएशन वाइज आई एम फुली प्रोडक्टिव बिकॉज आई लव डूइंग इट। एंड अनदर थिंग आई वांट टू शेयर इज टुडे इज माय चैनल्स 3 year एनिवर्सरी। मेरे चैनल को 3 साल ख़त्म हो गए हैं एंड आई जस्ट कांट बिलीव लाइक 2 साल तो मुझे इसको लेके आने में लग गए। द जर्नी हैज़ बीन अमेजिंग। आई जस्ट मैं शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकता। मुझे कंटेंट क्रिएशन ने क्या कुछ नहीं सिखाया है, क्या कुछ नहीं दिया है, बट आई एम जेन्युइनली ग्रेटफुल। थैंक यू इंसान का जिसने मुझे सब्सक्राइब किया है। ट्रस्ट मी, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। I've I've thought of multiple times of quitting it, but the love, the support, what I get, it's just incredible and which makes me motivated. And thank you so much, guys. I just love you so much. Love you so much. Thank you. Guys, having my favorite dinner, paratha. It's a plain crispy paratha with some garma garam. You can see that wave of aloo ki sabzi and thanda thanda dahi because I don't like milk. So good dinner. The next day. Hi guys, good morning. I hope you all are doing well and let me do an official intro of the video. Hi, if you're new to my channel, my name is Akash and you are right now watching Akash Sky Vlog. It has been 3 complete years where I've been creating content, cringe content and cringe content. आई थिंक मैंने कल अपना एक पुराना वीडियो देखा था around 2 years back when I was in 11th standard, and I just realized that my content has literally upgraded a lot. My communication skill have leveled up and the way of editing everything has leveled up, and I feel like I've connected to more people. So thank you so much, दिल से शुक्रिया। आज है 29 नवंबर, 30 और 1 दिसंबर, 2 ही दिन बचे मेरे पास, आज का मिला के 3 दिन to study for my ACCA exam. Now let me also talk about my ACCA because a lot of people were asking कि आप प्लीज़ एक dedicated video बना दो, but honestly अभी फ़िलहाल तो मेरे पास टाइम नहीं है। Probably after 2nd December I'll try to make a whole video on that. So until then let me give a small brief that what am I actually doing. So I study in Christ and right now I'm studying in यशवंतपुर campus. जिसको नहीं पता है उनको बता रहा हूँ, जिनको पता है थैंक यू सो मच याद रखने के लिए। वाई ACC? लाइक पहले मैं ये बता देता हूँ कि लोगों को ACCA क्या होता है। जैसे इंडिया में CA होता है, CA बॉडी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वैसे ही इंडिया के बाहर अगर आपको यही जॉब करनी है तो उसको ACCA बोलते हैं। मेजरली US, कनाडा, दुबई, कहीं भी बट आउट ऑफ इंडिया। सो दैट कोर्स इज कॉल्ड एज ACCA। मतलब CA ही कोर्स है बट वो इंडिया के बाहर का CA, इंडिया में इट इज नॉट कंसिडर्ड। सो व्हाई दिस कोर्स, व्हाई नॉट CA? So as everyone knows that CA is one of the very tough course, like it comes under one of the top courses, toughest courses in India. पास रेट भी बहुत कम है। दैट वॉज नॉट द रीज़न ऑफ चूजिंग ऑफ कोर्स। सो जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था ना, मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी CA की फॉर 3 months एंड आई हार्डली वेंट फॉर 10 days बिकॉज मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था। मुझे पता है पैसे वेस्ट हो गए बट हो गई तो हो गई, बट आई फील लाइक दैट वाज अ गुड डिसीजन। आपको फ्री ट्रायल क्लासेस भी मिलती हैं बट मैंने पैसे भर दिए थे। सो मुझे कहीं ना कहीं ये पता चल गया था कि CA इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। आई ट्राइड माई बेस्ट, ठीक है। मतलब जब तक मैं कैलकुलेटर में 2 लाख प्लस 40 लाख प्लस 80 लाख प्लस 50,000 कर रहा हूँ, इतने में लोगों ने आंसर बता भी दिया है। सो आई वॉज वेरी स्लो। लाइक यू कैन आस्क मी टू डू एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, मैं कर लूंगा बट नॉट नंबर्स, लाइक नॉट मैथ।
मैथ्स के अलावा मैं कुछ भी कर लूंगा. सो सीए हैज मैथ्स, सो दैट वाज द रीजन. सो आई वाज फीलिंग सो मच डिमोटिवेटेड दैट मेरा मन ही नहीं किया उसके बाद सीए करने का. एंड फिर सीए में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हैं. मतलब अगर आप सीए कर रहे हो तो आपको साथ साथ में कॉलेज करोगे तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा. पढ़ने के नंबर ऑफ आवर्स भी आपके बहुत होने चाहिए. और एक और रीज़न है कि सीए में आपको सारे पेपर्स एक ही साथ देने पड़ते हैं. जैसे आप फाउंडेशन दोगे तो फाउंडेशन में क्या होता है, आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, पाँचों सब्जेक्ट आपको एक साथ देने पड़ेंगे. फिर सेकंड लेवल में जब आ जाते हो, ग्रुप 1 ग्रुप 2 होता है. आप चूज़ कर सकते हो, बट अगेन ग्रुप में 4 सब्जेक्ट हैं, इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, वो देना पड़ेगा. एंड फिर आपको 2 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी. उसके बाद आपको फाउंडेशन लिखना पड़ेगा. दैट्स even if you clear in one attempt, you'll probably take 4.5 years. And that was like not my thing. So then I randomly came across a video on YouTube where it was like, मैं उनका चैनल यहाँ पे मेंशन कर दूंगा. प्लीज गो एंड चेक इट आउट इफ यू आर रियली कंफ्यूज्ड अबाउट योर लाइफ, दैट व्हाट यू हैव टू एक्चुअली डू. सो आई वॉच्ड अ रैंडम थंबनेल, ठीक है, सीए वर्सेस एसीसीए. आई एम लाइक, ये कौन सी पनौती है भाई, मैंने तो आज तक इसका नाम ही नहीं सुना, जैसे आपने नहीं सुना है. सो आई वॉच दैट वीडियो एंड ही वाज लाइक, सीए में आपको 100% देना पड़ता है, यहाँ पे आपको 40% देना पड़ेगा. यहाँ पे पास रेट 3% है, यहाँ पे 50% है. यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ देने पड़ते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको एक एक सब्जेक्ट देने पड़ते हैं. यहाँ पे आप बी कॉम करोगे, आपका सिर्फ फाउंडेशन एग्जाम होगा, यहाँ पे आपके 9 पेपर एग्जाम हो जाएंगे. सो दैट गाय ही वाज सो क्लियर इनफ. योर लाइक सैलरी इतनी मिलेगी तो इसको थोड़ी सी कम मिलेगी. आई एम लाइक, मुझे सैलरी थोड़ी कम मिल जाए क्योंकि मुझे पढ़ाई भी थोड़ी कम ही करनी है. आई सॉ दैट वीडियो एंड आई वॉज श्योर कि मुझे यही करना है. द नेक्स्ट सेकेंड स्टेप व्हाट आई डिड वाज फाउंड आउट अ कॉलेज जहाँ पे मुझे बी कॉम प्लस एसीसी मिल जाए. और उस कोर्स को इवेंचुअली बोलते हैं बी कॉम इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड फिनांस. इंटरनेशनल होना चाहिए, ठीक है. अकाउंटिंग एंड फिनांस है मतलब वो सीए. अगर इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड फिनांस है मतलब वो एसीसी है. समझ गए. सो आई ट्राई टू फाइंड आउट दैट कोर्स एंड देन लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि क्राइस्ट ऑफर्स दैट कोर्स. सो आई वाज लाइक, आई अप्लाइड इट. सो मैंने यशवंतपुर में अप्लाई किया था क्योंकि सेंट्रल मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर है. और रिसर्च वगैरह करने के बाद मुझे ये भी पता चला था कि जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं क्राइस्ट में, वो सुबह 7 बजे स्टार्ट होते हैं और 11-12 बजे तक चलते हैं. 12 से शाम के 5 बजे तक आपकी कोचिंग होती है. मैं नहीं चाहता था कि घर में 5 बजे निकलूं और शाम को मैं 7 बजे घर पहुंचूं. आई डेंट वांटेड दिस मॉर्निंग 7 to 5 to 7 ड्यूटी. आप नंबर ऑफ आवर्स काउंट कर लेना. मैं 2 घंटे ट्रैवलिंग में नहीं इन्वेस्ट करना चाहता था. दैट वाज द सिंपल रीजन ऑफ मी चूजिंग द यशवंतपुर कैंपस, which is just 4 kilometers. I take 15 minutes to go, 15 minutes to come, and that is very convenient. I'm really happy. That was my reason of choosing ACCA. Now another major reason, as I mentioned before, that out to become an ACCA, you probably have to give 13 papers. लेवल 1 में कुछ होते हैं, लेवल 2 में कुछ होते हैं, लेवल 3 में 4 पेपर्स होते हैं. सो यू हैव टू गिव टोटल 13 पेपर, जिसमें से माई लक वाज सो गुड दैट 9 पेपर आर गेटिंग एग्जेम्प्टेड. मतलब वो 9 पेपर मुझे नहीं लिखने हैं. नाउ लेट मी गिव अनदर क्लैरिटी कि लिखने क्यों नहीं है. तो ऐसे तो तुम्हें सिलेबस का ही नहीं पता चलेगा. अब क्योंकि मैं बीकॉम के साथ साथ एसीसी कर रहा हूँ, तो कॉलेज वालों ने क्या इंटीग्रेट करके रखा है कि जो तुम बीकॉम कर रहे हो, जो 9 पेपर हैं, दैट यू विल राइट अंडर बीकॉम, नॉट अंडर एसीसीए बॉडी. सो जो 9 पेपर जो मेरे एग्जाम्प्ट हो रहे हैं, इट्स नॉट लाइक आई डोंट हैव टू राइट एट ऑल. I'll be writing those 9 papers, but I'll be writing those 9 papers under the syllabus of my BCom. So जो आप नॉर्मल बीकॉम पढ़ते हो उससे मेरा बीकॉम बहुत ज़्यादा टफ एंड हार्ड है. आई फील लाइक जो नॉर्मल बीकॉम का पेपर 50 मार्क्स का होता है, आई राइट दैट सेम लाइक अ डिफरेंट पेपर फॉर 100 मार्क्स. जहाँ पे नॉर्मल बीकॉम का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट एग्जाम होता है, एक या दो, आई राइट 4 पेपर्स ऑफ एग्जाम. क्यों? क्योंकि मैं साथ साथ अपने एसीसी के पेपर्स भी लिख रहा हूँ. सो आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा ज़्यादा ही एनर्जेटिक हूँ क्योंकि अभी मैं सो के उठा हूँ. एंड आई एम लाइक, आई जस्ट वांट टू मोटिवेट यू गाइस टू डू वट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ. सो जो 9 पेपर है वो मैं बीकॉम के नीचे लिख रहा हूँ. सो आई इन शॉर्ट आई एम राइटिंग इन माई कॉलेज. अब बचे हैं 4 पेपर. एज आई टोल्ड यू, 9 पेपर एग्जाम होंगे, टोटल 13 पेपर होते हैं, तो 4 बचे. अब जो ये 4 पेपर है, इनमें से जो पहला पेपर है, यू कैन चूज विच एवर ऑर्डर यू वॉन्ट टू. ओके. अब जो 4 पेपर है उनमें से एक सब्जेक्ट इट इज नेम्ड एज SBL, स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप. इट इज अ फुल्ली थ्योरी पेपर. हाँ भाई, तो और आज गिव मी 1 मिनट. हाँ. तो इन चारों में से जो मेरा पहला पेपर है दैट इज SBL, विच इज अ कंप्लीट थ्योरी पेपर.
And again, the good part, see, I'm not saying ACCA is not at all tough. It is very tough, okay? But the reason why it becomes more easier than CA is the flexibility. अब सीए में आपको चार चार पेपर एक साथ देने पड़ेंगे, तो चार एक साथ पढ़ने पड़ेंगे, तो चारों की टेंशन एक साथ होगी। एसीसीए में आप फ्लेक्सिबल रह सकते हो, यू कैन चूज वन पेपर एट ए टाइम, जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इतना ही दिमाग का है, इतना ही चलता है, एक साथ एक ही पढ़ सकता हूँ। और फीस भी बहुत है। राइट नाउ इन 2025 दिसंबर अटेम्प्ट के लिए आई एम गिविंग एसबीएल के लिए 30,000 32,000 इंक्लूडिंग ऑल टैक्स एंड ऑल। सो दैट इज देयर। एंड वेर एज जितना मैंने सुना है सीए का एक पेपर की फीस अराउंड 1500 कुछ होती है। सो प्राइस वेरिएंट बहुत ज़्यादा है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि पीपल हु थिंक दैट ओ एसीसी बनने के बाद तो हमें अब्रॉड ही जाके काम करना पड़ेगा, इंडिया में तो सीए है। आई गेट दैट पॉइंट, बट ऑल्सो यू कैन वर्क इन इंडिया एज वेल। एमएनसीज नाम की एक चीज़ होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो अब्रॉड की कंपनीज इंडिया में आके काम करती है, आप वहाँ पे जाके काम कर सकते हो। यू कैन वर्क एज ए इंस्टीट्यूशन, लाइक आप कोचिंग वगैरह सिखा सकते हो, बहुत पैसा मैं बता रहा हूँ। एक एक चीज पे मत रिलाई करना। इवन इफ यू बिकम एन ACCA, probably do like 3-4 jobs so that you can make whatever money you're making into 3, because having multiple sources of income is very important. इसके बारे में हम बाद में ज्ञान की बात करेंगे। फिलहाल मैं बता रहा हूँ, जो मेरा पहला एसबीएल का पेपर है उसके लिए मेरी फटी पड़ी है, मतलब 30,000 सुन के जो मेरी फटी है। एंड लेट मी रिमाइंड यू, 2 दिन पहले, आई नो आई हैव माई एग्जाम इन द नेक्स्ट 7 days, ठीक है? बट स्टिल आई वेंट आउट विथ माई फ्रेंड्स एंड आई वाज पार्टिंग एज इफ जो 30,000 भरे हैं वो मेरी लॉटरी लगी थी। आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग यू, आई रियली वैल्यू योर मनी। और अभी मैं इतना ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लेट मी टेल यू, मेरा फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो गया। एंड अनदर फैक्ट, अब पापा पापा मम्मी बाहर गए शादी में, दीदी कॉलेज निकल गई है, शी टुक हर फोन, नाउ आई एम होम अलोन एंड आई डोंट हैव माई फोन रिचार्ज। I don't even have network to send my or send call or send my father that please पापा रिचार्ज कर दो, रिचार्ज खत्म हो गया। आई ऑल्सो हैव दिस वर्क फ़ोन जो कि वीवो वालों ने स्पॉन्सर किया, धन्यवाद वीवो, जो कि मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ। अब इस फ़ोन में भी एक सिम है, बट जो सिम है वो अगेन उसका रिचार्ज तो 2-3 महीने पहले ही ख़त्म हुआ पड़ा है। सो आई डोंट नो, इस फ़ोन को मैं बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ गेम्स खेलने के लिए। यू कैन सी द अमाउंट ऑफ गेम्स आई हैव, लाइक इट्स सो क्रेजी। सो अपने आईफोन पे थोड़ा कम बर्डन पड़ता है, इसलिए मैं इसमें यूज़ कर लेता हूँ। तो अभी वही है, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, पता नहीं कैसे पापा को, ये मैं कबूतर को लगता है मुझे कबूतर को बुला के संदेश भेजना पड़ेगा। मैंने इतनी बकवास भी कर लिया, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मुझे पढ़ाई करने के लिए भी नेटवर्क चाहिए जो कि है नहीं। और जो एसबीएल पेपर है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट लेट मी जस्ट टेल यू, इट्स नॉट गोना बी ईजी। आई जस्ट हैव लास्ट 3 days टू प्रिपेयर फॉर इट। एंड इमेजिन 3 days में 3,000 पेजेस का सिलेबस कंप्लीट करना होगा मुझे, सिर्फ 3,000 का। तो मैं करके दिखाऊंगा, आप बस मुझे सपोर्ट करते रहिए। आप मुझे बस सपोर्ट करते रहिए, भले ही आप अपना सब्जेक्ट ना पढ़ो, ठीक है? आई नो इवन यू हैव टू स्टडी अ लॉट, बट इट्स फाइन। यू कैन जस्ट वॉच माई वीडियो, कमेंट एंड मोटिवेट मी, क्योंकि तुम तो वैसे भी नहीं पढ़ रहे हो, एटलीस्ट मैं पढ़ लूँ, मुझे मोटिवेशन दे दो। क्या बोलते हो? अगर मैं पढ़ लूँगा, अच्छे से पढ़ लिख के कुछ बन जाऊँगा, अगर मैं एक ऐसे थंबनेल में डालूँगा गेटिंग माय फर्स्ट लैम्बोर्गिनी टाइप्स, तो यू विल गेट मोटिवेटेड कि अरे इसने कर दिखाया तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट दैट मोटिवेशन। बाय गाइस। 6.5 hours later. Hey guys, good evening. I studied for a while और पापा ने रिचार्ज करा दिया था लॉन्ग बैक, लाइक मॉर्निंग में ही करा दिया था 11 बजे, लाइक जिस टाइम मैंने वीडियो बनाई थी उसके 1 घंटे बाद। अभी फाइनली मैं बाहर निकला हूँ एंड आई एम जस्ट सीइंग इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। आई एम वेयरिंग अ जैकेट, आई एम वेयरिंग अ स्वेटर, आई एम वेयरिंग अ टी शर्ट एंड इट इज़ जस्ट वे टू कोल्ड, ओके। मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली है, मैंने नहा लिया है, मैंने लंच कर लिया था। राइट नाउ आई एम गोइंग टू पिक अप माई सिस्टर, क्योंकि वो भी कॉलेज से आने वाली हैं। और साथ ही में मैं यहाँ पे दूध लेने भी जा रहा हूँ, क्योंकि घर पे दूध ख़त्म हो गया है। आई एम रियली क्रेविंग फॉर सम हॉट हॉट कॉफ़ी। और बाहर जैसे आपको कोहरा दिख रहा है आज, वैसे ही कोहरा, आज फ़ोन का कैमरा गंदा नहीं है, आज कोहरा ही कोहरा है। सो लेट्स गो। Guys, I did another study session and right now I'm going to the railway station. मैं अपनी मामी और मैं अपनी कज़न को पिकअप करने जा रहा हूँ, बिकॉज सैटरडे संडे है, तो मम्मी पापा बाहर गए हैं तो वो लोग आ गए, सो दैट इट्स जस्ट अ गुड फैमिली गेट टुगेदर।
तो मैं उनको लेने जा रहा हूँ अभी। लेट्स गो एंड पिक देम अप। एंड अनदर थिंग गाइस, मैं आपको बाद में शेयर करता हूँ। इट इज़ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। हे गाइस, आई लिटरली स्पोक सो लॉन्ग और अब मैंने ध्यान दिया कि मेरा कैमरा बंद था। आई वाज सेइंग दैट अब मेरे एग्ज़ाम को सिर्फ 40 आवर्स बचे हैं, लेस देन 40 आवर्स, 39 आवर्स। एंड आज है 30th नवंबर। कल का एक दिन और जाना है, दैट जस्ट गो पास अवे। आई डिड 2 मॉक टेस्ट, आई डिड सम प्रैक्टिसिंग, आई वॉच्ड सम ऑफ द वीडियोज़ एंड आई जस्ट स्पोक विथ माय फ्रेंड्स। सारी चीज़ें ठीक जा रही हैं, टेंशन है वो तो रहेगी ऑफ कोर्स। अभी अनदर वेरी मेजर थिंग इज़ आई गॉट रियली सिक। राइट नाउ द टेम्परेचर इज़ अराउंड 16 डिग्रीज इन बैंगलोर। बारिश भी आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है एंड बहुत गंदा वाला कोल्ड भी हो गया। आई थिंक मैं नहा के आई डायरेक्टली वेंट टू पिक अप माई सिस्टर कॉलेज से, और वहाँ से आते आते मुझे कोल्ड हो गया है। राइट नाउ आई हैव सम हॉट वाटर, आई प्रॉबली टेक सम मेडिसिन, टेक सम रेस्ट एंड देन गो थ्रू रिमेनिंग वीडियोज़। वो सारी कंप्लीट करूँगा एंड देन आई कैच यू टमोरो व्हेन इट्स द लास्ट डे ऑफ माई study, and then I have the final exam. See you. Guys, another random video. Don't judge me. मैं ऐसे लेटा हुआ, मतलब मैं आपको कैसे दिखाऊं कि मैं कैसे लेटा हूँ। मतलब यू नो वी यूज़ फ़ोन टू मच इन अ होल डे, तो हमारी नेक ऐसी है वो ऐसी हो जाती है। So you should probably do this exercise at least like 5 minutes a day, so that आपका जो नेक ऐसे होता है वो ऐसे हो जाएगा। आई होप सो। और इससे ना मेरे सर में भी आराम होता है। आज पूरे दिन आई डोंट नो, दिस पार्ट ऑफ माई ब्रेन इज़ पेनिंग अ लॉट, मे बी बिकॉज ऑफ कोल्ड, मे बी बिकॉज ऑफ माई एग्ज़ाम और एनीथिंग, but I don't know. Now I'll catch you tomorrow. Till then, good night. It's 10 o'clock. I'm sleeping. I'm hoping to wake up early tomorrow so that I can study. But let's check. Bye. हे गाइस, सो फाइनली आज था मेरा 1 डे बिफोर एग्ज़ाम एंड आई डोंट नो कितने नंबर ऑफ आवर्स बचे हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँगा। देन 24 आवर्स बचे हैं मेरे एग्ज़ाम के लिए। सो जी हाँ, मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, मुझे नहीं पता है कितना क्या पढ़ना है। इट इज़ एसबीएल, और एसबीएल का एज सच कोई प्रॉपर सिलेबस ही नहीं है। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ लाइक, आपने वो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज देखे होंगे कि आपको पैसेज देंगे, उसमें से ढूंढ के आंसर्स निकालने हैं। तो वैसा टाइप का है। एंड अभी फ़िलहाल आई थिंक 8:30-9 बज रहे होंगे, और मैंने फाइनल जो रिवीजन होता है वो कर लिया है। मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर वगैरह थे वो मैंने सारे कर लिए हैं। एंड फ्रॉम लास्ट 3 डेज़ गाइज, लिटरली 3-4 दिन से मैं इस बेड से ही नहीं उठा हूँ। द ओनली टाइम आई हैव गॉटन अप इज़ टू टेक अ शावर, टू गो टू वॉशरूम, टू ईट समथिंग, टू वॉश माई हैंड्स। मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के अलावा मैं यहाँ से नहीं उठा हूँ। आई डोंट नो, अब मेरे अंदर धक 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 स्टार्ट होने लग गई है, पहले उतनी कम थी। आई हैव ऑल्सो पैक्ड माई बैग देयर, इफ़ यू कैन सी, या दिस बैग, द लैपटॉप बैग, क्योंकि इसमें मैंने अपनी और अपने फ्रेंड्स की हॉल टिकट रख ली है। आई हैव कैरीड अ वाटर बॉटल। पेन तो चाहिए नहीं क्योंकि टाइपिंग का है। सो आई डू टाइपिंग टेस्ट राइट नाउ, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस बनी रहे, मसल मेमोरी याद रहे। एंड विद दिस मैंने आईडी कार्ड कैरी किया, आधार कार्ड कैरी किया, वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड।
अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं आउटफिट निकाल के रख देता हूँ। टुमारो माय एग्ज़ाम इज़ अराउंड 1:30 टिल 4:30 और मे बी 5, आई डोंट नो। 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे का पेपर है, सो आई हैव टू रीच देयर बाय 12:30। सो फ्रॉम हियर आई विल गो टू माय फ्रेंड्स होम एंड फ्रेंड के घर से फिर हम लोग वहाँ पे सेंटर पे जाएँगे। सो आई विल प्रोबेबली लीव एट 11। सो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं 9 बजे भी उठ गया, सो 1 घंटा मैं रिविज़न कर लूँगा, फिर नहा धो के कुछ खा पी के 11 बजे मैं निकल जाऊँगा। 11:30 तक उसके घर पे पहुँच जाऊँगा एंड इट इज़ ऑल गुड टू गो। नाउ आई थिंक आई विल कैच यू टुमारो एंड विश मी ऑल द लक एंड विशेस कि कल का मेरा दिन अच्छा जाए। बाय। The next day. Guys, good morning. It's 9:09. It's 2nd of December and the day has come finally. And मैं 10 बजे नहाने जाऊँगा right now. I'm studying. I'm doing the final revision. मैंने अपनी कॉफ़ी बना के पी लिया. I just spoke with my friends. And I'll do this revision very quickly because it's around 60 pages and I hardly have 50 minutes. So I'll just finish this. एक पेज 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए. And yes, I'll catch you later. अभी मेरे पास बात करने के लिए टाइम नहीं है. It's 10:40 राइट नाउ और अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। सॉरी, क्या देख रहे हो? सो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। आई थिंक आई हैव टू लीव एट 11 o'clock, सो आई हैव 20 मिनट्स, 15-20 मिनट तो मैं नहाने में लगा दूंगा। नहा धो के कपड़े पहन के देन आई विल कैच यू। आई एम थिंकिंग टू शूट अ गेट रेडी विद मी बट आई एम नॉट श्योर, बट देखते हैं। मैंने पूजा कर दी है, मैं नहा लिया हूँ, मैंने अपनी वाटर बॉटल फिल कर लिया है। इन शॉर्ट जो जो बैग में डालना था, कैलकुलेटर, पेंसिल, वो सारी चीज़ें ले ली हैं। इट्स ऑलमोस्ट टाइम हो गया। मैं जूते पहनता हूँ, स्वेटर पहनता हूँ एंड देन लेट्स गो। ऑलरेडी मैंने ऊपर ये एक डाल लिया। आई डोंट नो इसको अंदर अलाउड करेंगे कि नहीं, बट क्योंकि ठंड है सो आई प्रिफर वेयरिंग इट एंड आई एम लीविंग नाउ। माय फ्रेंड इज़ ऑलमोस्ट कॉलिंग मी और बाकी का पूरा आउटफिट मैं आपको बाहर जाके दिखा दूंगा। बाय। Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. Guys, I've reached near the location and we are 1 hour prior. यहाँ पे है this thing and almost all my friends and everyone are, मतलब पूरी क्लास का सेंटर यहीं पे आया है। We are just waiting. कार में 1 घंटा पड़ा है, सो हम वेट करते हैं। अब टेंशन हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है गाइस। अब लिटरली हार्ट बीट धक 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 हो रही है। There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh I. Guys, like this is such a sexy car. I love this car. X5 BMW. Can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away. 3 hours later. Bye, Brownie. Thank you for waiting for 3 hours. Guys, I'm done with the paper. I don't know why I feel the paper. And भाई साहब 3.5 घंटे जो लोग बैठे हैं, मेरी तो बैग चली गई। Guys, one recommendation, please improve your typing speed. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Now I'm feeling very hungry. Probably I'll have something and then go back home. Much later. ये क्या होटल है? बर्गर के लिए यहाँ पे 45 मिनट्स वेट करा रहे हैं। क्या ऑर्डर ये लेके आए, इनको खुद को नहीं पता है। मतलब सीरियसली, हमसे बाद में कस्टमर्स आए, वो खा के चले भी गए, हम लोग यहीं पे बैठे हैं।
यार इन लोगों को ये नहीं पता है कौन सा ऑर्डर कौन सा है, लाइक सीरियसली इतनी केयरलेसनेस. Do in front of it. So what? You're paying for it. It's not a charity, right? यार हालत खराब हो रही है. 3 घंटे पेपर दो, 1 घंटा यहाँ पे बैठो. मेरा तो चलो आ गया. कहीं ऐसा ना हो वेज की जगह नॉन वेज दे दे. You got a burger, no? Yeah, but it was a combo or something. Let's see the condition of the burger. ओ भाई साहब उल्टा लेके आए हैं. ऐसे लग रहा है कुछ भी बना के दे दिया है. विराज का अभी तक नहीं आया. How do you feeling, Viraz? I feel so bad. Customer satisfaction. Very bad. We already Yes. wrote SBL, and this is what we get. Exactly. RT Nagar, it seems. आरटी नगर एम्पायर. Not sponsored. भाई ये कैसा बर्गर आधा खाया हुआ. Bro, can you call him once? Excuse me. Excuse me. Excuse me. It is actually. कुछ Wait, क्या advantages are coming in show? भाई यहाँ की लाइट भी चली गई है. 1960 नहीं 1860 या 1960. 1960 से ये होटल है. कैसे चल रहा है? एक जनरेटर नहीं लगा सकते? जनरेटर छोड़े एक यूपीएस तो लगा ही सकते हो. चलो वो भी छोड़ो, मोमबत्तियाँ रख दो यहाँ पे. कैंडल लाइट डिनर ही हो जाएगा. गाइस एग्जाम हो गया, यहाँ पे खाना भी हो गया. अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं. इट्स प्रोबेबली आई टेक अनदर 2 hours टू रीच बैक होम. भाई साहब यहाँ से कैब का पिकअप इट्स शोइंग लाइक सम 25 minutes. अच्छे खासे फंसे हैं. और खाना दिस होटल लाइक द एम्पायर आरटी नगर इट्स लाइक प्रिटी मच आई गिव लाइक 3 on 10. बैड सर्विस, फूड वाज ओके, बट आई फील लाइक अगर इतना पे ही कर रहे हैं तो हम कोई अच्छी जगह पे भी जा सकते थे. नेवर माइंड, विल बुक अ कैब एंड देन रीच होम एंड देन आई लेट यू नो. गाइस टैक्सी तो मिल नहीं रही थी 2 स्टॉप के लिए, इसलिए आई एम डूइंग माय रैपिडो. ये लोग अलग से आएंगे. बाय गाइस. क्रिश बाय. बाय योगी. योगी बाय. I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. And my days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment